Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme Principles of Classical Conditioning Theory. Dear students, as we know that classical conditioning theory is propounded by one of the eminent behavioral psychologists, namely Ivan Pavlov. He was a Russian-born psychologist working on digestive glands. I mean to say secretion of digestive glands. The Ivan Pavlov was basically neurologist and physiologist. While working on secretions of digestive glands, he propounded the theory which is known as classical conditioning theory. Dear students, as we know that classical conditioning theory is purely based on the environmentalistic approach. It means how the environment plays important role in order to shape or modify the behavior of organism. Keeping in view Ivan Pavlov's approach, the stimulus plays important role in order to modify the behavior of an organism. That is why Ivan Pavlovian conditioning is also known as S type of conditioning, because thrust is onto the stimulus. It means it is the stimulus which plays important role in order to evoke the responses from the organism. यानी कि अगर organism particular way में behave करता है, it is all because of stimulus. In S type of conditioning, primary is the stimulus, while as response is the secondary. Dear students, S type of conditioning is also known as respondent conditioning. Respondent conditioning simply means the type of conditioning in which responses are evoked in the presence of known stimulus. Known stimulus means, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिकल दिमाग में लाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. जब हम आइसक्रीम की तरफ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. सो वी कैन से दैट एज पर द क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच, every response is result of the stimulus. When there is no stimulus, then there is no response at all. Dear students, now we will focus on various principles of classical conditioning theory. जैसे कि हम सब जानते हैं, principles simply means well established rules and laws. यानी कि कोई भी learning possible नहीं है as per the classical conditioning approach without following the certain rules or laws. जैसे कि हम सब जानते हैं, if we have to boil the water, तो वाटर को बॉयल करने के लिए हमें रूल फॉलो करना पड़ता है. So far as rule is concerned, we have to boil the water at 100 degree Celsius. यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब तक कि हम इंड्यूस नहीं करेंगे तब तक वाटर बॉयल नहीं हो जाएगा. Now, if we have to freeze the water, I mean to say if we have to change the state of water into the ice, how come it is possible? It means once again हमें रूल या लॉ को फॉलो करना पड़ेगा. And law is that we have to create 0 degree Celsius temperature. जब तक कि हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. इसीलिए कोई भी लिक्विड हम फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो लिक्विड जो है वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड नाउ सेम इज द केस in case of psychological discourse. Keeping in view the discourse of psychology, जैसे कि हम सब जानते हैं
साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट मैटर है विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और किस तरीके से हम लर्न करते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न वी हैव टू आल्सो follow the principles. I mean to say you well established rules and laws. Dear students, as per the classical conditioning approach is concerned, no learning will take place without following the rule or law. There are the various principles as per the classical conditioning theory. The major principles of the theory are entitled as under number 1, principle of extinction. Dear students, principle of extinction is the first primary principle of classical conditioning theory. Now what do you understand from the term extinction? Extinction से क्या मुराद है? Extinction, dear student, simply means disappearance of the responses. यानी कि जब रेस्पॉन्सेस डिसअपियर हो जाएंगे तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। एंड कब डिसअपियरेंस ऑफ रेस्पॉन्स होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी गिव द कंडीशनड स्टिमुलस, आई मीन टू से यू बेल, टू द ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ टाइम्स without giving the unconditioned stimulus food, time will come when the organism, it may be any organism like dog, will stop to give the responses, and finally it will lead the organism in the state of extinction when completely responses will get disappear. यानी कि जब हम कंडीशनड स्टिमुलस बार बार देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को लेकिन फूड नहीं देते हैं, आई मीन टू से यू अनकंडीशनड स्टिमुलस का यूज नहीं करते हैं, और ऐसा टाइम आ जाएगा जब ऑर्गेनिज्म, इट मे बी डॉग, वो रेस्पॉन्स बंद करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एवन पेवलो ने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में डॉग को रखा और कंडीशनड स्टिमुलस बार बार देता था, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रिंगिंग ऑफ बेल। जब बेल अगेन एंड अगेन बजती थी लेकिन कुत्ता रेस्पॉन्स देता था, एंड नंबर ऑफ टाइम्स डॉग हैज गिवन द रेस्पॉन्स इन एक्सपेक्टेशन दैट आई विल गेट द फूड, लेकिन फूड को एज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस विद होल्ड किया था एवन पेवलो ने। एंड टाइम केम जब एवन पेवलो ने कंडीशनड स्टिमुलस दिया लेकिन डॉग ने फिर रेस्पॉन्स देना छोड़ दिया। It means complete disappearance of response taken place, and when the complete disappearance of the responses takes place, so it results finally the extinction. हम दूसरे मायने में कह सकते हैं, dear students, extinction means non-occurrence of the responses. जब हम एक ऑर्गेनिज्म को कंडीशनड स्टिमुलस देते हैं विदाउट गिविंग द अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो ऑटोमेटिकली फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, उसमें कंप्लीट रेस्पॉन्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। नाउ इफ वी विल अप्लाई इट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे या किसी फैक्ट्री की बात करेंगे, एक इंडस्ट्री में चलाने वाला एक ओनर होता है और इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बहुत से वर्कर्स काम करते हैं और कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा काम करते हैं। दे आर वर्किंग लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी करके वो ज़्यादा काम करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन हमें वेजेस ज़्यादा मिल जाएगी, हमें एक्स्ट्रा बोनस ज़्यादा मिल जाएगा। अगर ओनर ने एक्स्ट्रा वर्क पे बोनस नहीं दिए, वेजेस नहीं दिए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं दे विल नॉट डू द एक्स्ट्रा वर्क, वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। इट मीन्स नॉन अकरेंस ऑफ द रेस्पॉन्सेज विल टेक प्लेस, यानी कि कंप्लीटली काम करने का रेस्पॉन्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स में ख़त्म हो जाएगा, आई मीन टू से यू ह्यूमन इंडिविजुअल्स में ख़त्म हो जाएगा।
Humans also work on the basis of various incentives and rewards. Dear students, apart from industrialization or factory, we will talk about educational institution, where there is the teacher and especially the taught. अगर टीचर बच्चे से टास्क्स करवाता है रिलेटेड टू द एकेडमिक्स और बच्चा सही तरीके से काम को करता है, आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम और सिंपली परफॉर्मिंग द टास्क्स, बच्चे को एनकरेजमेंट नहीं मिलती है, बच्चे को रिवार्ड और इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो इससे क्या हो जाएगा? क्योंकि बच्चा सही तरीके से काम करता है, हर एक टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन बिहेवियर जो एक टीचर का है वो पैसिव है, वो कोई एनकरेजमेंट नहीं देता है, कोई इंसेंटिव और रिवार्ड नहीं देता है, कोई ग्रेड बच्चे को नहीं प्रोवाइड करता है। इट विल फाइनली लीड द लर्नर और ग्रुप ऑफ द लर्नर्स इन द extinction state, where they will leave to give the responses. फिर वो responses नहीं देंगे, उनमें completely responses disappear हो जाएंगे, because always learners work on incentives and rewards. उनमें motivation develop होती है when we provide the unconditional stimulus in the form of reward. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्सटिंक्शन वो स्टेट है जहां पर एक इंडिविजुअल के, एक ऑर्गेनिज्म के रेस्पॉन्सेस गायब हो जाते हैं। क्यों ये डिसअपियर हो जाते हैं? बिकॉज वी विदहोल्ड द रिवार्ड, वी विदहोल्ड द अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब तक अनकंडीशनल स्टिमुलस विदहोल्ड रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिजम्स में रेस्पॉन्सेस भी कम पड़ जाएंगे, और एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब ऑर्गेनिज्म कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा, यानी कि उसका ओवरऑल बिहेवियर जो है वो जीरो लेवल को टच करेगा। व्हेन यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल रेस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाई इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में बी the parents, stakeholder may be the administrators, stakeholders may be the teachers, especially the teacher community की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर को एक क्लोज कनेक्टिविटी होती है लर्नर के साथ। दे हैव टू कीप इट इन द कॉग्निजेंस कि रीइंफोर्समेंट को कंप्लीटली बंद नहीं होना चाहिए, रिवार्ड बंद नहीं होना चाहिए। Here reward and reinforcement is in the form of unconditional stimulus. अगर हमने unconditional stimulus बंद किया तो लर्नर जो है उनमें जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम पड़ जाएगी, और वक्त ऐसा आ जाएगा जब वो लर्नर्स एक मोटिवेशन नहीं दिखाएंगे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए। नंबर सेकंड, principle of spontaneous recovery. Dear students, principle of spontaneous recovery, it is another important principle of classical conditioning theory. As we know that spontaneous recovery always after extinction होता है। Spontaneous recovery is not before the extinction. जब भी आपको spontaneous recovery को समझना है, ये एक्सटिंक्शन के बाद स्टार्ट होता है। इसकी मीनिंग जो है ये एक्सटिंक्शन ही में छुपी है। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी? आई मीन टू से यू व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रिंसिपल स्पॉन्टेनियस रिकवरी। डियर स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस रिकवरी बेसिकली मीन्स occurrence of the response. I mean to say you reoccurrence or reappearance of the responses is known as spontaneous recovery. दो चीजें हैं, एक नॉन अकरेंस ऑफ द रेस्पॉन्स, दूसरी reoccurrence ऑफ द रेस्पॉन्स। यानी कि जो एक्सटिंक्शन थी उसमें ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स नहीं देता है, रेस्पॉन्स धीरे धीरे कम होते हैं, और एक वक्त ऐसा आ जाता है
जब एक ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स देना छोड़ देता है, सो दैट स्टेज इज नोन एज एक्सटिंक्शन। अब हमें उस एक्सटिंक्शन से उसे वापस लाना है। इट मीन्स वी हैव टू रीअपियर और रीअकर द रेस्पॉन्स। अब हम चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटर चाहता है कि वो फिर से उस ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस या जनरेट कर ले, जिस तरीके से हमने क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट में देखा है। जब एक ऑर्गेनिज्म ने रेस्पॉन्सेस छोड़ दिए, यानी कि डॉग ने, एवान पेवलो को अब पता चला कि जो डॉग है ये एक्सटिंक्शन स्टेट में है, ये अब रेस्पॉन्सेस नहीं देता है। एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब एवान पेवलो ने फिर से डॉग को एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में रखा अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इन ऑर्डर टू reoccur और reappear the responses in the dog। जो ये डॉग था, अब इसमें फिर से रेस्पॉन्सेस जनरेट कर लेना। अब एवान पेवलो ने कंडीशनर स्टिमुलस दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंगिंग अ बेल, और डॉग धीरे से आया। तो एवान पेवलो ने यहां से अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड दिया, और डॉग को जब फूड मिला, उसकी हंगर नीड जो थी वो सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद फिर से कंडीशनल स्टिमुलस एवान पेवलो ने दिया सेकंड टाइम, और उस वक्त डॉग ने क्विकली रेस्पॉन्स दिया एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो थर्ड टाइम भी कंडीशनल स्टिमुलस रिंगिंग ऑफ बेल का यूज किया, तो जो इस वक्त रेस्पॉन्स डॉग में था वो मोर क्विक था एज कंपेयर टू प्रीवियस टू रेस्पॉन्सेस। और आहिस्ता आहिस्ता एवान पेवलो ने डॉग को उस स्टेट पे पहुंचाया जो ही वो कंडीशनल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ रिंगिंग ऑफ बेल देता था, और क्विकली डॉग रेस्पॉन्स देता था। सो इट मीन्स दैट कंप्लीट reoccurrence और reappearance ऑफ द रेस्पॉन्सेस टेकन प्लेस। तो रीजेनरेट अब रेस्पॉन्सेस एक ऑर्गेनिज्म में हो गए। सो दिस प्रोसेस और दिस प्रिंसिपल इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इट मीन्स कि जब एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्सेस खत्म हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा से उसी ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जब भी हमें किसी अनट्रेन्ड ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर शेप करना है, तो उस वक्त हम उसे उसी तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स ऑल लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ द environment। So this is actually the main crux of one of the schools of the psychology that is known as behavioral school of psychology। Dear students, अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, किस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पॉन्सेस रिजनरेट करेंगे, रिअकर करेंगे। एक टीचर का बिहेवियर पैसिव नहीं होना चाहिए while द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द टास्क्स। अगर स्टूडेंट सही तरीके से काम करता है, वो हर एक स्किल को सही तरीके से परफॉर्म करता है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो रीइंफोर्समेंट को विद होल्ड ना रखे, वो रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करे। रीइंफोर्समेंट हियर इन क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस। वो इंसेंटिव्स का यूज कर ले, वो रिवार्ड का यूज कर ले, ताकि जो बच्चे एक्सटिंक्शन के शिकार हो चुके हैं उनमें reoccurrence ऑफ द रेस्पॉन्सेस विल टेक प्लेस, उनमें रेस्पॉन्सेस फिर से जनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो नटशेल वी कैन से दैट स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज दैट स्टेट इन विच द ऑर्गेनिज्म reoccur or reproduce the responses